Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Sonnet to Science by Edgar Allan Poe. So Edgar Allan Poe was an American writer, philosopher, great philanthropist who was born on 19th January 1809 and he died on 7th October 1849. This particular poem Sonnet to Science is a 14 lines poem and the main theme is the conflict between science and imagination. यहाँ पे जो पोइट हैं वो कहना चाहते हैं कि पोइट्स जो होते हैं वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं और वो पोइट्री लिखते हैं. उनकी इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है. दे कैन इमेजिन एनीथिंग, ब्यूटिफुल थिंग्स, एंड दे राइट पोइट्री. बट यहाँ पे साइंस उनके लॉजिक को वो रोकता है, वहाँ पे स्टॉप करता है. एंड साइंस इज टेलिंग दैट नो, द वे यू आर थिंकिंग दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे. साइंस हैज़ अ प्रॉपर लॉजिक एंड साइंटिफिक वे टू प्रूव एवरीथिंग. तो यहाँ पे इस पोइम में पोइट ने ये दिखाने की कोशिश की है कि साइंस और इमेजिनेशन की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस पोइम के थ्रू हमें देखने को मिलेगी. दोज हु आर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट द पोइम नाउ. Here, poet is directly talking to science. Science, true daughter of old time thou art. So here, the poet is telling to science, you are like a daughter of the old times, who alterest all things with thy peering eyes. So here, the poet is telling to science that people imagine a lot of things. People imagine with their creative power of imagination. They imagine a lot of things, and poets, they write poetry. But what science does? Science क्या करता है? वो आके उनकी imagination को रोकता है और वो science अपना scientific point of view दिखाने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि this is the thing which has a logic. और आप लोग illogical वे से ये imagine कर रहे हो, whereas हर चीज़ का एक scientific point होता है. Why preyest thou thus upon the poet's heart? So here the poet is telling कि science, why are you making the poet's heart sad? जो poets हैं वो imagine करते हैं, उनकी imagination के wings में वो बहुत कुछ खो जाते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं. But science आके वहाँ पे क्या करता है, उनकी imagination को wrong proof कर देता है और वो अपना scientific thought वहाँ पे रखता है. Vulture whose wings are dull realities. So science is like a vulture whose truth is like dull realities. How should he love thee, or how deem thee wise? So how should he love thee? यहाँ पे he किसको बोला गया है? He poet को बोला गया है. जो poet हैं उनको बोला गया है. तो यहाँ poet बोल रहे हैं साइंस तुम्हें पोएट कैसे तुम्हें पसंद करे. ही मीन्स द पोएट इटसेल्फ. जो पोएट है वो तुम्हें कैसे पसंद करे जब तुम हर चीज़ में हमें रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हो, हमें रोकते हो, हमारी इमेजिनेशन को आगे बढ़ने नहीं देते हो. तो मैं तुम्हें कैसे पसंद करूं. Who wouldst leave him in the wandering? So पोइट यहाँ पे बोलना चाहते हैं पोइट वॉन्ट्स टू गो टू हिज इमेजिनेशन और ब्यूटीफुल थिंग्स वो इमेजिन कर सकता है. अकॉर्डिंग टू पोइट उसके इमेजिनेशन से वो बर्ड्स के साथ स्काई में उड़ रहा है, वो बटरफ्लाइज की तरह उड़ रहा है. ही इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, ही इज स्विमिंग इन द रिवर. वो इमेजिनेशन में एवरीथिंग इज पॉसिबल. बट according to science, no, there has to be a logic behind everything. So this is the conflict between science and imagination. To seek for treasure in the jeweled skies. So poet wants to go to the sky. वो स्काई में जाके वो ज्वेल्ड स्काइज में वो अपनी जो ज्वेल्ड जो हियर ज्वेल्ड स्काइज मीन्स द स्टार्स इन द स्काई. तो वो अपनी पोइट जो है वो अपनी इमेजिनेशन में जाके स्टार्स को तोड़ना चाहता है. वो ज्वेल्स जो हैं वहाँ पे वो तोड़ना चाहता है. बट अकॉर्डिंग टू साइंस ये कह रहा है कि हाउ कैन यू गो एंड प्लग द स्टार्स. दे आर सेलेस्टियल बॉडीज, you cannot plug the stars. So here is the conflict between science and imagination. Excuse me. Albert he soared with an undaunted wing. So the poet wants to fly with his thoughts. There are 100 thoughts that are flying in his minds. He wants to fly everywhere. But science comes there and checks reality check. Science उसको poet को दिखाता है. Hast thou not dragged Dinah from her car? So who is Dinah? Dinah is the goddess of hunting in Greek mythology. तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं डायना जो बच्चों को जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उसमें बोला जाता है कि जो गॉडेस डायना है वो इज़ द गॉडेस ऑफ हंटिंग. वो अपने चैरियट में घूमती रहती है. पर तुमने उस चीज़ को भी
बच्चों जो जो कहानियाँ सुनाते हैं उसमें भी तुमने एक रियलिटी चेक दे दी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू साइंस दिस इज़ नॉट देयर। एंड ड्रिवन द हैमयार्ड फ्रॉम द वुड्स। तो हैमयार्ड कौन है? जो फेरीज हैं हु लिव इन द फॉरेस्ट। और ये माना जाता है पोइट्स में, पोइट्स लोग स्टोरीज में जो पढ़ते हैं और वो जो इमेजिन करते हैं, जो हैमयार्ड होते हैं वो ट्रीज़ में रहते हैं, और जो ट्रीज़ में जब तक वो हैमयार्ड रहते हैं ट्रीज़ में, ट्री तब तक जिंदा रहता है। अगर कोई हैमयार्ड जो फेरी अगर उस ट्री को छोड़ दे के चली जाती है तो उस ट्री की डेथ हो जाती है। दिस इज अ इमेजिनेशन और दिस इज अ स्टोरी जो बच्चों को सुनाई जाती है एंड जो फोक टेल्स हैं वो सुनाई जाती है। बट साइंस आके इस चीज़ को प्रूव करता है कि नो, ट्रीज जो होती हैं वो हैमयार्ड्स की वजह से ज़िंदा नहीं रहती। ट्रीज दे आर अलाइव ड्यू टू द सनलाइट, वाटर एंड दीज आर द थिंग्स। तो साइंस आके ये लॉजिक अपना जो है वो देता है, और वो जो इमेजिनेटिव जो थ्योरीज हैं, जो स्टोरीज हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं करता है। To seek a shelter in the happier star, hast thou not torn the Naiad from the flood? And Naiad कौन है? ये एक वाटर फेरी है। और जो स्टोरीज़ हैं उसमें बोला जाता है कि जो रिवर में, जो रिवर का जो फ्लो होता है वो कितना जाता है, कितना ये होगा, और जो फ्लो कितना रहेगा, फ्लड्स जो आते हैं वो नायाड जो है ये कंट्रोल करती है। बट साइंस आके अकॉर्डिंग टू इमेजिनेशन, दिस इज़ द थिंग स्टोरीज़ में जो हैं, बट यहाँ पे भी साइंस आके उसको स्टॉप कर देता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा रिवर में कोई फेरी नहीं है, ये जो फ्लड आते हैं दैट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव रेन। और ये साइंस आके ये सब चीज़ों को रियलिटी चेक देता है और बोलता है कि नो, दिस इज़ नॉट द थिंग, रियलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। तो दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड इमेजिनेशन। पोइट्स जो हैं वो अपने इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ों को वो इमेजिन करते हैं और सोचते हैं, लेकिन साइंस आके वो हर इमेजिनेशन को वो एक रियलिटी, अलग रियलिटी साइंटिफिक वे से वो प्रूव करके चला जाता है। तो पोइट्स यही कह रहे हैं कि तुम हमारी इमेजिनेशन को बहुत हद तक रोक देते हो और हमें पोइट्री लिखने से, इमेजिन करने से तुम स्टॉप कर देते हो। तुम्हारा इन साइंस और इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। Elephant from the green grass and from me the summer dream beneath the tamarind tree। तो पोइट जो हैं वो अपने समर डेज़ में एक टर्मरिन ट्री के नीचे बैठ के बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि वो क्या करेंगे, वो अपने इमेजिनेशन में कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। वो अपने इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। द पोइट इज़ थिंकिंग मैनी थिंग्स, बट दैट टाइम साइंस इज़ कमिंग और वो सारी चीज़ों को साइंस रोक देता है, उनकी इमेजिनेशन को वो फ्लाई करने नहीं देता है। तो पोइट इज सेइंग दैट कि मैं जितने सारी भी चीज़ें इमेजिन करूं, साइंस आके सब कुछ वो एक दूसरा ही पहलू हमें दिखाता है। साइंस इज शोइंग अस अ डिफरेंट पिक्चर। So this is the end of the poem, and the main theme of the poem is the conflict between science and imagination. So the poet here, he is having a lot of problem against science कि जब से साइंस आया है इसने पोइट के इमेजिनेशंस को रोक दिया है और वो हर चीज़ में एक रियलिटी दिखाने की कोशिश करता है, जिससे जो पोइट्स हैं वो अपनी इमेजिनेशन को वो पूरी अपनी उड़ान भर नहीं पा रहे हैं। Here this poet speaks about the damage that science has done to art, particularly the section of poetry in art or the imagination। तो साइंस ने जितना डैमेज किया है उसके बारे में पोइट इस पोएम में बोल रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन फ्रॉम वेयर आर यू वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।